बोलो लाडली लाल की। Starting with Doha number 65. जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 जय राधे जय राधे राधे। राधे जय राधे जय राधे। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण। सकल धर्म को मूल है एक कृष्ण भगवान। राधे राधे। सकल धर्म को मूल है एक कृष्ण भगवान। राधे राधे। कृष्ण
मूल तजे सब शूल हैं, कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। ज्ञान राधे राधे। मूल तजे सब शूल हैं, कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। सब शूल हैं, कर्म जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 I'll give a brief explanation of each of these dohas as we sing them, both in English and in Hindi, briefly in both, so that everyone can understand. As I've mentioned several times while doing the Vyakhya of the previous dohas, Jagat Guru Shri Kripaluji Maharaj was known for being Nikhila Darshan Samanvayacharya. He reconciled all the views of the various scriptures, saints, and great personalities from Hinduism. This verse beautifully explains the relationship between Supreme God and the various paths. He mentions dharma, karma, yoga, gyan, and unspoken but included in this is the path of bhakti. So you can say that, there's a big confusion about this and a lot of debate about which is the right path, which is the best path. And what tends to happen is people who follow one path disparage other paths. But no one, see, if you're saying one path is better or one path is the right path, and saying other paths are not the right path,
then the question always comes, why are they even in our scriptures at all? Our scriptures are wrong? Or the saints who propagated these paths are wrong? No, that can't be either. So you need someone like Shri Kripaluji Maharaj to come along and say, no, no, no. Here you need to see the whole picture, and he provides a model or a structure in which we can insert these various paths and understand what their value is and how they're related to each other. So what he's referring to here is that obviously Bhagwan is the main thing. Bhagwan is our main goal. We want to attain him because he is the soul of our soul and he is the form of divine bliss. So he starts by actually defining what dharma is. Dharma is what takes you to God. This is why it is said in Kathopanishad, Sarve Vedayat Padama Mananti. Every mantra of the entire Ved is pointing towards God or indicating towards God. Every part of the entire Vedas is to take a soul towards God. In the Bhagavatam, Shri Krishna himself says, Dharmo yasyam madatmakah. Dharma is that through which a soul comes to me. Very simple. So this is why Shri Maharaj Ji here says, Sakal dharma ko mool hain, ek Krishna Bhagwan. The mool means the root. The most important part of any plant is the root. If you take the root out, uproot the plant, but keep the leaves, the sticks, the branches, the flowers, is not going to be worth anything, right? The root has to be there, which provides the life to the whole rest of the plant. So the root is the main thing. Here, by saying that Shri Krishna is the mool, it means both that dharma comes from Shri Krishna and he is the goal of dharma. Both. Bhagwan is our everything. He is the source of our life and he's also the goal of our life. He is the source of the Vedas and he is also the goal of the Vedas. Vasudeva para Veda, Vasudeva para Makha, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriya, Vasudeva param jnanam, Vasudeva param tapah, Vasudeva paro dharmo, Vasudeva paragati. Also from the Bhagavatam, Sut Ji is telling Shaunakadik Paramahans that Shri Krishna is the origin of Vedas, he is the goal of Vedas, he's the origin of dharma, karma, jnana, yoga, tap, all of that, and he is the goal of all of that. It makes perfect sense. The divine knowledge, which is in Vedas, and the path, all the spiritual paths that are described in Vedas and originate from Vedas, they're all part of God's divine, eternal divine power. God himself produces Vedas and therefore produces all of these paths in the world. Why? So that we can reach him. That's the first point. But the second point is, if we leave him out of it, meaning there are some people who practice jnana or yoga or karma or dharma and they don't keep God as their goal.
They're following the principles of karma, of Vedas, but leaving out this important point that God is the goal. They're following perhaps the path of Gyan or the path of Yoga, but they're leaving out the need to have God as the goal. So if someone is doing such a thing, they've left out the root, and whatever they have left is going to shrivel up and die. Let me give you a few other references from the scriptures. For those who may not understand in English, let me just recap that in this doha, Shri Kripalu Ji Maharaj कह रहे हैं कि जितने भी धर्म कर्म, जितने भी मार्ग हैं, कर्म योग ज्ञान, जितने भी धर्म हैं, उन सब का मूल है श्री कृष्ण. श्री कृष्ण सबका अंतिम गति है. श्री कृष्ण सबका, सारे जीवों का लक्ष्य हैं. श्री कृष्ण सबका जीवन है. तो वे हमारे सब कुछ हैं. यदि कोई कर्म का पालन करें, धर्म का पालन करें, ज्ञान मार्ग पर चलें, योग मार्ग पर चलें और श्री कृष्ण के लिए न करें, श्री कृष्ण प्राप्ति का लक्ष्य रख कर न चलें, तो ऐसा हुआ कि आपने मूल को निकाला, जड़ को निकाला और आप पुष्प पत्र शाखा उपशाखा वगैरह रख रहे हैं, तो क्या होगा? वो सब ढह जाएगा ना. तो भगवान प्रमुख हैं, भगवान को रखना है, भगवान को अपने मन में रखना है. इसलिए कहा गया है श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघातिनाम. वेद व्यास जी कह रहे हैं भागवत में कि जैसे कोई धान कूट रहा है, someone pounds the rice that has the husk covering it after you've harvested it, कोई कूट रहा है और वो चावल निकाल रहा है. चावल निकाल के वो जो हस्क बाकी है उसको छोड़ दिया वहीं पर, और जो खाने लायक है वो ले गया. कि कोई और आदमी देख रहा था और उसने कहा देखो उसने इसको कूटा और उससे चावल निकला, मैं भी कूटूंगा. तो उसमें तो चावल निकल गया है, क्या निकलेगा अब? तो क्या मिलेगा उससे? परिश्रम. ऐसे ही वेदव्यास जी कह रहे हैं यदि कोई ज्ञान मार्ग पर चल रहा है लेकिन भक्ति को बाहर कर दिया है, भक्ति का मतलब है श्री कृष्ण को रख कर सामने कि ये लक्ष्य हैं और उनकी कृपा भी चाहिए मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा की ज़रूरत है. ये भक्ति है ना. जब हम शरणागत होते हैं उसका दूसरा नाम भक्ति है. तो जो ज्ञानी भक्ति नहीं करता है वो तो परिश्रम ही परिश्रम कर रहा है. कर्म के लिए भी वही लिखा है भागवत में, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेषु
धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासूयः नान्यत् पादयो यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। जो कर्म धर्म का पालन करता है लेकिन श्री कृष्ण के चरण कमलों से प्यार नहीं करता है तो उसके धर्म कर्म के पालन का परिणाम परिश्रम ही परिश्रम है। श्रम एव ही केवलम। तो भगवान रखना सामने उसका मतलब है भक्ति होनी चाहिए, भक्ति ज़रूरी है। तो इसमें कृपालु जी महाराज कह रहे हैं कि मूल तजे सब शूल हैं कर्म योग अरु ज्ञान। लेकिन कृपालु जी महाराज वेदों का सम्मान कर रहे हैं, कर्म मार्ग का सम्मान कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग का सम्मान कर रहे हैं और योग मार्ग का सम्मान कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं। लेकिन सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। We have to understand Jagadguru Shri Kripaluji Maharaj, he's accepting all of these paths, but he's showing us the way that they're interconnected. So he's saying bhakti is main, you have to keep God in your heart. No matter what path you're following, God should be your goal. And if God is in your heart, it means bhakti is in your heart. Surrendering to God is another name for bhakti. So that's why bhakti is always supreme. It's always the supreme and independent path, without which other paths cannot do without. भक्ति के बिना कर्म ज्ञान योग ये सब अंतिम लक्ष्य नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये मार्ग तो सही हैं, ये वेद में है। कर्म धर्म ज्ञान योग ये सब वेद में है, संतों ने भी बताया है। लेकिन प्रॉपर पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि भक्ति के बिना कर्म भगवान तक पहुंचा नहीं सकता है। भक्ति के बिना धर्म ज्ञान योग ये सब भगवान तक नहीं पहुंचा सकते हैं और माया निवृत्तिदायक भी नहीं बन सकते। लेकिन मार्ग सही है। Karma is a real path which is described in Vedas. Gyan is a real path described in Vedas. Yoga is a real path. But without bhakti, if someone thinks they're going to attain the ultimate thing, that's why Ramayana says, Yoga kuyoga jnana agyanu जहाँ नहीं राम प्रेम परधामु. That yoga or gyan without devotion to the lotus feet of Shri Ram, well, that yoga is kuyog. Ku means worthless, bad. And gyan is agyan. That gyan is actually ignorance if it doesn't lead to love for God. So sab dharma karma jari jau, jahan ram pad pankaj bhau. That dharma or that karma which is bereft of love for the lotus feet of Shri Ram, Tulsidas Ji says that might as well just be burnt up because it's useless. It's just an empty physical action if it is bereft of love for God. So we see that Kripaluji Maharaj has beautifully summarized the true meaning of dharma. That dharma means that which takes you to God. And all of these paths have value, but their true value is when they are combined with love for God, devotion for God. So they have to be combined with bhakti. Without bhakti, they are like a tree without a root, a plant that's had its root torn up. And with bhakti,
Well, then, due to the association of the bhakti, they can take you anywhere you want to go. Jo Hari, in the next doha, Jo Hari seva hetu ho, soi karma bakhan, Jo Hari bhagati badhave, soi samujhiya gyan. This is a direct translation of 1/2 shlok of Bhagavat. Tat karma haritosham yat sa vidya tanmatiryaya. That is karma which is done to please Shri Krishna. And that is gyan which develops love in the heart for Shri Krishna. Very simple. A very simple definition of dharma we had in the previous doha, and a very simple definition of karma and gyan in this doha. There are different ways to do karma. You can do karma to please Shri Krishna. You can do karma having not thought of Shri Krishna, but also not having attachment in the world, or you can do karma with an attachment to the phal that you're going to get, to some kind of gain that you're going to get in this world. But here, Shri Kripaluji Maharaj is saying the Vandaniya one is that karma which is done to please Shri Krishna. So again, if the goal is to please Shri Krishna, it means you've added bhakti. Bhakti is definitely there. And true gyan is that which develops love for Shri Krishna. As I've already previously explained, that when you truly understand the value of something, then you develop attachment for it. So if we study the scriptures and increase our scholarly knowledge, but our love for Shri Krishna does not grow, it means that we haven't gained true knowledge. We've only increased our pride. So true gyan, true knowledge must develop side by side with love for God, bhakti for God. So we'll sing this next doha and then we'll go further ahead. I think we can turn the fans off. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe 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 Jai Radhe Jai Radhe Krishna Jaya Krishna Jaya Krishna जो हरि सेवा हेतु हो
बखान राधे राधे। कर्म बखान जो हरि सेवा हेतु सोई कर्म बखान राधे राधे। जो हरि भगति बढ़ावे सोई समुझिय ज्ञान राधे राधे। जो हरि भगति बढ़ावे सोई समुझिय ज्ञान राधे राधे। बढ़ावे समुझिय जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। 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 अभी पिछले दोहे में श्री महाराज जी हमको सिखा रहे थे कि कर्म धर्म ज्ञान योग इत्यादि जो भक्ति रहित है वो निंदनीय है।
और मैंने आपको कई वेद शास्त्र के कोटेशंस भी दिया है इस उपलक्ष्य में। यदि वो भक्ति सहित हो तब वंदनीय है, परम वंदनीय है। अब महाराज जी एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं अगले दोहे में। ये बात पाप और पुण्य की बात, लोग समझते हैं कि सात्विक कर्म तो पुण्य होगा और तामस कर्म पाप होगा। लोगों ने मतलब पुराणों में और रामायण में भी समझाया गया है कि लोगों को दुख देना है पाप है और लोगों का हेल्प करना है ये पुण्य है। लेकिन एक जगह पर वेद व्यास जी ने दूसरा डेफिनेशन दिया है। मन्निमित्तं कृतं पापं मद्धर्माय च कल्पते मामनादृत्य धर्मोऽपि पापं स्यान्मत् प्रभावतः। वेद व्यास जी ने खुद लिखा है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। पुण्य ये है जो मेरे निमित्त किया जाता है और पाप ये है जो भी आप करते हैं मुझे भुलाकर, यही पाप है। सिंपल डेफिनेशन। So this is a different definition that than people are used to. Normally people think doing good to others is punya, it's a good action, and doing harm to others is a bad action. But in one place, Vedavyas ji gave a totally different definition. He said, anything we do which is done to please God is punya. And anything we do where we have forgotten God is pap. And the very same thing Kripaluji Maharaj has explained in this doha. उसी बात कृपालुजी महाराज ने अपने शब्दों में समझाया है इस दोहे में। तो ऐसा क्यों? एक विज्ञान है कि हमारा मन एक कपड़ा समझिए, ये कपड़ा गंदा है। कैसे गंदा हुआ? क्योंकि अनंत जन्मों में अनंत बुरे कर्म किए हैं, बुरे विचार हुए हैं और उससे हमारा मन अत्यंत गंदा हो गया है। उसको साफ करना है। तो मलिन कपड़े को साफ कैसे करते हैं? शुद्ध पानी से ना। तो शुद्ध कौन है? भगवान है। तो भगवान मन में लाओ, मन शुद्ध हो जाएगा। तो जितना समय हम लोग भगवान अपने मन में रखते हैं, जितनी देर हम भगवान का स्मरण करते हैं, उतनी देर हमारा मन शुद्ध हो रहा है। और जब भी हम भगवान को भुला देते हैं तो मन कहाँ होगा? मन संसार में होगा, माया में होगा। तो फिर और गंदा हो रहा है। उस समय दो ही क्षेत्र हैं, भगवत क्षेत्र या मायिक क्षेत्र। मायिक क्षेत्र के संपर्क से मन गंदा हो जाता है और भगवत क्षेत्र के संपर्क से मन शुद्ध हो जाता है। सीधी सी बात है। इसलिए जब हम पाप ये है, जिस समय हमारा मन गंदा हो रहा है, पाप हो रहा है, समझ लो। तो आप एक एग्जाम्पल सोच सकते हैं शायद कि मान लो कि मैं अपनी माता जी से प्यार कर रहा हूँ और उस समय मैंने भगवान को भुला दिया। ये पाप है क्या?
कहाँ लिखा है? हाँ, पाप है। आपने भगवान को भुलाया और मन किस में है? एक मायिक जीव में है। वो मायिक जीव, उस मायिक जीव का मन का क्या परिस्थिति है? आपका जैसा होगा ना। अनंत जन्मों का पापी हम सब हैं। भले ही हमारे माता पिता जी हमारे पूज्य हैं ज़रूर, फिर भी उनका हाल वैसा ही है जैसा हमारा है। तो हमने मन किसी भी मायिक जीव में लगाया है तो उस संपर्क से हमारा मन और गंदा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग बुरे हैं, लेकिन वही होगा यदि कोई हम में मन लगाता है, वही उनको भी होगा, क्योंकि हमारा मन भी गंदा है। तो जिसने हमसे अटैचमेंट कर दिया है उनको भी और गंदगी मिलेगी मुझसे, क्योंकि मैं भी मायिक हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पूज्य लोग बुरे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन मायिक तो हैं। हम मायाबद्ध हैं और अनंत जन्मों का अनंत कर्म भरा हुआ है हमारे मन में। मायिक कामनाएं भरे हैं, मायिक अटैचमेंट भरा है, मोह भरा है हम सब के हृदयों में। तो वही मिलेगा ना। इसलिए कहा जाता है इस दृष्टिकोण से कि किसी भी मायिक जीव से प्यार करना पाप है। पाप इस दृष्टि, ये मतलब नहीं है कि हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन इस दृष्टि से कि हमारा मन और गंदा हो रहा है, क्योंकि माया में डूबा हुआ है, हमने डुबाया है। भगवान में डुबाना चाहिए, भगवान लाना चाहिए। हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं। या तो हम भगवान ला सकते हैं या तो हम माया ला सकते हैं। तो या तो हम भगवान से प्यार कर सकते हैं या तो हम माया से, माने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति से प्यार कर सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि उनसे प्यार करो। एक भी जगह आप निकाल के नहीं दिखा सकते हैं मुझे कि यहाँ लिखा है कि माँ से प्यार करो। लिखा तो है कि मातृदेवो भव। हाँ, माँ पूज्य हैं, पिताजी पूज्य हैं, उनको सम्मान देना है, लेकिन ये व्यवहार है। प्यार और व्यवहार में अंतर है। भगवान, हम लोग उल्टा करते हैं। हम भगवान के प्रति व्यवहार करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, मतलब हम दिखावा करते हैं। शरीर से, इंद्रियों से हम दिखाते हैं कुछ और संसार से प्यार करते हैं। हमारे शास्त्र वेद उल्टा कहते हैं कि व्यवहार, अच्छा व्यवहार करो, मीठा बोलो, सबको सम्मान दो, अपनी ड्यूटी करो माँ के प्रति, बाप के प्रति, बेटों के प्रति, और भगवान से प्यार करो। दोनों एक साथ हो सकते हैं। संसार से व्यवहार, मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, ड्यूटी, लेकिन प्यार नहीं प्यार भगवान के लिए। तो भगवान मन में लाओ और संसार से मीठा व्यवहार करना। तो जितनी देर हमारा मन भगवान में रहेगा उतनी देर के लिए हम पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, और जितनी देर के लिए हमने भगवान को भुला दिया उतनी देर के लिए हम और पाप कमा रहे हैं। मतलब हम और हमारा मन और अटैचमेंट ला रहा है, माया में और डुबा रहे हैं हम अपने मन को। तो ये आशय है इस दोहे का, ये आशय है। तो
ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, हमको क्रियात्मक रूप देना है, इसको करके देखेंगे कि ये पॉसिबल है। लोग डरते हैं कि माँ से प्यार नहीं करेंगे, बाप से प्यार नहीं करेंगे, बेटे से प्यार नहीं करेंगे तो ड्यूटी भी नहीं हो जाएगी। नहीं, प्यार और ड्यूटी विरोधी बात हैं। जितना प्यार है उतना ड्यूटी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्यार का मतलब है अटैचमेंट है। वो अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि हमने आशा की है कि इससे सुख मिलेगा। तो जैसे ही हमने आशा की है कि अपने बेटे से सुख मिलेगा, हमने एक्सपेक्टेशन किया है उस पर, और अब इमोशन उसमें भी है कि तुम्हारे ऐसे व्यवहार से मुझे सुख मिलेगा। तुमने ऐसे व्यवहार नहीं किया, तुमने उल्टा व्यवहार किया तो क्रोध आया मुझे। तो क्रोध आया माँ को, बाप को, तो फिर ड्यूटी कैसे करेंगे? ड्यूटी तो किया जाता है जब मन शांत है ना, तब हम सोचते हैं हम अपनी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या बोलना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, मैं इमोशनली रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो बुद्धि से काम लेना चाहिए अपने बच्चों के साथ। लेकिन जब प्यार की बात आई तब ये इमोशनल रिएक्शन हो जाता है। तब हम ये समझ नहीं पाते कि क्या मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ कि अपने लिए कर रहा हूँ। हम क्यों चाहते हैं कि अपना बेटा डॉक्टर बने? अपनी प्रतिष्ठा के लिए या उसके सुख के लिए? समझो, आप समझ नहीं पाते क्योंकि इतना इमोशन भरा हुआ है उसमें। आप नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्योंकि वही बुद्धि भ्रमित है, उसी बुद्धि में अटैचमेंट है, मोह है, और उसी बुद्धि से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्लियरली नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्यार करना और ड्यूटी करना ये विरोधी बातें हैं, क्योंकि प्यार स्वार्थ पर निर्भर है। असली प्यार तो निष्काम है, ये तो हम जानते हैं कि असली प्यार दूसरों के सुख के लिए है। जब हम दूसरे के लिए, दूसरे के सुख के लिए कुछ करते हैं, वो असली प्यार है। प्यार करने का मतलब है सेवा करना, दूसरों की सेवा करना। लेकिन हम निष्काम प्यार, निष्काम सेवा कब कर पाएंगे? जब हमको सुख मिलेगा ना। अभी सुख, हम सुखी नहीं हैं, हम आनंदमय नहीं हैं, और वो कामना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम सुख चाहते हैं, वो हमारा नंबर 1 कामना है। हमको सुख चाहिए, और भगवान सुख हैं। जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक असली सुख हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम बेटे से आशा करते हैं, माँ से आशा करते हैं, बाप से आशा करते हैं, स्त्री से, पति से आशा करते हैं कि इन सब लोगों से सुख मिलेगा। लेकिन उनके पास भी नहीं है उनके पास भी नहीं है, हमारे पास नहीं है, और हम सब एक दूसरों से आशा कर रहे हैं और धोखा भी दे रहे हैं। धोखा ऐसे देते हैं ना कि हम एक्टिंग करते हैं कि हाँ, मुझसे प्यार करोगे तो तुमको सुख मिलेगा। हम ये शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन ये मैसेज है हम ऐसे एक्टिंग करते हैं कि मैं कुछ हूँ, तो जो भी हमसे दोस्ती करेगा, जो भी हमसे प्यार करेगा, उसको सुख मिलेगा।
और लोग धोखा खाते हैं इसीलिए हमारे दोस्त बन जाते हैं, और क्यों बनेंगे? हमारे ऊपर कृपा करने कोई दोस्त नहीं बनेगा। क्या हमने कभी ये सोच के किसी का दोस्त बना है कि मैं इसको सुख देना चाहता हूं, मैं उसका दोस्त बनूंगा? हमने कभी नहीं सोचा। हमने ये सोचा शायद इससे सुख मिलेगा, मैं इसका दोस्त बनूंगा। शायद यदि दूसरे लोग मुझे देखकर और समझते हैं कि ये इसका दोस्त है, ओ ये तो बड़ा आदमी है, और या ये कूल है, ये समझेंगे तो मुझे सुख मिलेगा। तो हम ये सोच के किसी का दोस्त बनता है, मित्रता करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा पहले कि इसको सुखी करना है तो मैं इसका दोस्त बनूंगा। तो ये प्रमाण है कि हम सब स्वार्थी हैं, और स्वार्थ हमारे प्यार का आधार है। वही हमारे बच्चों के साथ है। भले ही हम जब वो पैदा होते हैं तो माँ बाप सैक्रिफाइस तो बहुत करते हैं, लेकिन जब प्लानिंग हुआ कि बच्चे पैदा करना है तो क्यों डिसीजन लिया आपने? क्या आपने सोचा है कि मुझे एक बच्चा चाहिए क्योंकि उस बच्चे को सुख देना है? नहीं, आपने सोचा कि बच्चा मिलने से मुझे सुख मिलेगा। तो ये आधार है ना। तो जब हम ये समझते हैं तो हम थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं। किसी को हम बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सब ऐसे ही हैं। हमारे पास सुख नहीं है और हम सब स्वार्थी हैं, ये हमारा स्वभाव है और कोई इस स्वभाव को बदल नहीं सकता है, क्योंकि सुख चाहना हमारा नेचर है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तब हम सुखी हो जाएंगे, तब हम निष्काम बन जाएंगे अपने आप, तब हम दूसरों की निष्काम सेवा कर सकेंगे, दूसरों से निष्काम प्यार कर सकेंगे। लेकिन तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये सब तत्व ज्ञान है, हमको मानना है कि हम ये सब, as we say in English, we're all in the same boat. So none of us are bad. None of us are doing something that we're not supposed to be doing. We're all looking for happiness. And all of us have a heart which is full of all the wrong thoughts and karma and things from all of our past lives. So we have to accept the fact that we're fallen souls. But we're all fallen souls together. But the point, the goal of life is to purify our heart by attaching our mind to God. And only then our mind will gradually be purified. And if we attach our mind to each other, we're only getting more of the same from each other. Because whomever you attach your mind to, you get what's in their heart. You imbibe their qualities. So even if you admire someone's qualities, yet if they're still under Maya, then they still have a heart full of all the same things that we have. So we should reserve love for God, but sweetly interact with people in this world and do our duty towards our family in this world and towards the society in this world with respect for everybody and with humbleness in our heart. Then our duty becomes easier because we've removed the emotional attachment to the people with whom we're trying to interact, and now we see clearly, oh, they're just another soul like me. They're also looking for happiness, and that's why sometimes they act out, sometimes they make mistakes, they also have many faults, just like I have many faults. We become more accepting of people and more forgiving of people. And we look at our children and our husband and our wife and our parents, and we're able to be more accepting and forgiving of them too. That's where the main challenge is, isn't it? Where is the main problem?
The main problem we have is with our own family, because we're so close and we're so emotionally attached to them. That's where we have trouble behaving in a nice way. We react, they react. Every day we have something like this happening. So if we're able to reduce that attachment to our family members, it doesn't impede our ability to do our family duty. It actually increases our ability, because we become more accepting and forgiving, and we become much more clear-headed and able to see what is the right way to behave, what is the right decision to make in each individual situation. So this is the explanation for this doha, which tells us that every second that we forget God, we're actually doing a sin, because our mind is becoming more impure if we've forgotten God. And every moment that we're remembering God, our mind is getting purified, so that is considered as punya. So now we'll sing this final doha. Jai Radhe Krishna Radhe 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 Krishna Radhe. 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 Jai Radhe, Jai Radhe. Krishna, Jai Krishna, Jai Krishna. हरि निमित्त जो पाप कर सो पुण्य कहाए राधे राधे। निमित्त जो पाप कर सो पुण्य हरि तजी जो कर पुण्य तो आप पाप बनी जाए राधे राधे। पुण्य तो आप पाप
बनी जाए। राधे राधे। हरि तजी जो कर पुण्य तो आप पाप बनी जाए। राधे राधे। तजी जो कर तो पाप बनी जाए। राधे। जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे। बोलो राधा गोविंद भगवान की।